Hello everyone, how are you? In the previous lecture, we solved some very important question answers. Now in this session, we again solve some very important question answers. Let's start. Okay, remaining question answers हम solve करेंगे. Now first question, define asexual reproduction. Name two methods of asexual reproduction in animals. तो define asexual reproduction या फिर what is asexual reproduction, both are same. तो the type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. तो what happen in a asexual reproduction? Only a single parent is involved. Only a single parent is involved in asexual reproduction. And there are two methods of asexual reproduction. First is budding and second is binary fission. What happen in the budding? Outer growth is occur in the budding. Outer growth occur होती है, outer growth होती है budding के अंदर. For example of hydra. अगर when we talk about the which type of asexual reproduction occur in hydra, the answer is budding. Okay, and binary fission it is occur in amoeba. Okay, तो when we talk about the amoeba, तो amoeba में कौन सा होगा? Binary fission. What happen in the binary fission? A parent cell divided into two daughter cells. कि for example this is a single parent cell. Okay, now this single parent cell further divided into two daughter cell. So this is a binary fission. कि binary it means divided into two parts and fission मतलब dividation. तो binary fission. तो this is a binary fission. कि जो सिंगल सेल है वो टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रही है. What do you understand by reproduction? Reproduction. What is reproduction? Reproduction means producing new two living beings of same kinds. Reproduction it means कि जो new offspring generate करना, new offspring को generate करना सेम होती है. न्यू ऑफस्प्रिंग कैसी होती है? सेम टू पेरेंट्स, पेरेंट्स की सिमिलर होती है. तो दिस इज रिप्रोडक्शन. व्हाट हैपन इन द रिप्रोडक्शन? कि न्यू ऑफस्प्रिंग इज जनरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल. दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन एंड दिस न्यू ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, what is sexual reproduction? तो basically reproduction there are two types of reproduction, asexual and sexual. Okay, asexual and sexual reproduction. तो asexual reproduction it means कि asexual reproduction में क्या होगा? सिंगल पेरेंट होंगे इन्वॉल्व इन single parents. And what happen in the sexual reproduction? So the fusion of male and female gametes is known as the asexual reproduction. तो fusion of male and female gametes, male and female gametes के fusion से क्या हो रहा है? इसे हम क्या कहेंगे? sexual reproduction. Now next सिमिलर है कि व्हाट इज अनदर डेफिनेशन कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नेम द फर्स्ट नेम टू बी क्लोन्ड. ओके, तो नेम द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड. कि फर्स्ट मैमल a sheep named Dolly which has born on 5th July 1996. So this is a clone. Okay, and what is cloning? Basically what happen in the cloning? For example कि हम किसकी बात करें? sheep की, डॉली की ही बात करते हैं. तो there are two sheeps. First is black face. Okay, देखो शेप यहाँ पे टू शीप्स थी, टू शीप थी. फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज वाइट. ओके, टू शीप थी. फर्स्ट इज ब्लैक फेस शीप एंड सेकेंड इज वाइट फेस शीप. तो जो ब्लैक फेस शीप है, व्हाट वी डू इन द क्लोनिंग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा? जो ब्लैक एंड वाइट, जो ब्लैक शीप थी उससे हमने
जो हम सेल थी उसमें से हमने न्यूक्लियस को क्या करा, रिमूव किया, ई न्यूक्लिएटेड, इसको हमने क्या करा, ई न्यूक्लिएटेड। इट मीन्स कि रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस, हमने इसमें से क्या कर दिया, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। और जो व्हाइट वाली सेल थी उसमें से हमने क्या चूज किया, न्यूक्लियस, इसमें से हमने क्या चूज किया, न्यूक्लियस। अब जो ये ई न्यूक्लिएटेड हमारे पास क्या था, साइटोप्लाज्म, दिस इज अ साइटोप्लाज्म, ओके, एंड दिस इज अ न्यूक्लियस, ओके, ये क्या हमारा न्यूक्लियस है एंड ये दिस इज अ साइटोप्लाज्म। हम इसको न्यूक्लियस को इस तरह से दिस इज आवर न्यूक्लियस, ओके, हमने इसको डिफरेंट कलर से मेंशन कर लिया। तो दिस इज आवर साइटोप्लाज्म एंड दिस इज आवर न्यूक्लियस। अब हमने क्या करा, फ्यूजन किया, ओके, तो जब हमारे फ्यूजन के अंदर दिस इज आवर साइटोप्लाज्म, ओके, एंड दिस इज आवर न्यूक्लियस, ओके, तो ये तो हमारा क्या है, न्यूक्लियस, एंड दिस इज आवर साइटोप्लाज्म। अब जब फ्यूजन हुआ, अब न्यूक्लियस हमारा कैसा था, व्हाइट था, और साइटोप्लाज्म हमारा कैसा था, ब्लैक वाली शीप से लिया था। अब ये वाली जो सेल है, इस सेल को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, ब्लैक शीप के अंदर हमने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया। तो ब्लैक शीप में जब हमने इसको ट्रांसफर किया तो ब्लैक शीप के कौन सा बेबी हुआ, व्हाइट फेस वाला बेबी हुआ, व्हाइट फेस वाली शीप हुई उसके। तो इट मीन्स कि दिस इज अ क्लोन, ये क्या है, क्लोनिंग है, कि इसके जो फर्स्ट क्लोनिंग कौन सी थी, जो फर्स्ट शीप जनरेट हुई थी, दिस इज अ डॉली। नेक्स्ट, in which female reproductive organ does the embryo get embedded, okay, so the embryo get embedded in the wall of the uterus of female for further development। तो कहां पर होता है, wall of the uterus। now next, what are two modes by which animal reproduce? First is sexual reproduction and second is asexual रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सिमिलर, आंसर सिमिलर है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। और टू मोड्स, ओके, मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अकर, तो आंसर सिमिलर ही होगा, दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस, ओके। तो अब ये सेम क्वेश्चन हम प्रीवियस भी कर चुके हैं, बट इसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग डिफरेंट है, ओके। तो नाउ दिस इज व्हाट इज द नेम ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस, ओके। तो व्हाट इज द आंसर, इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिमिलर है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दिस इज द आंसर, ओके। एंड इसको हमने क्या कर दिया, आंसर को ही हमने क्या बना दिया, क्वेश्चन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस, तो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, ओके। तो व्हाट हैपन व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द egg, तो this is fertilization, okay। same, what is fertilization, तो basically what is the definition of fertilization, तो when fusion of male and female gamete, this is called fertilization। तो and simple है कि when sperm and come in the contact with egg, तो this is known as the fertilization। और fertilization की definition क्या है, what is the definition of fertilization, when male and female gametes fuse, they form a new zygote, this is called a fertilization। what is the importance of reproduction, तो reproduction is essential for the continuation of a species, it is important कि why reproduction is important, तो continuation of a species, that's why reproduction is important। what are female sex cells called, female sex cells क्या होती हैं, ova, this is a ova। now
नेक्स्ट व्हाट इज मेल गैमेट? ओके, मेल गैमेट क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल इन मेल्स आर कॉल्ड मेल गैमेट्स. Okay, which cells are reproductive cells? These cells are known as the male gamete. Okay, and कौन सा होता है? sperm. Okay, what is zygote? The cell that is formed by union of female reproduction cell and male reproduction cell. Okay, so what is zygote? When female gamete and male gamete are fused together, they form a single cell structure. This structure is called as the zygote. Okay, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? formed by union of female reproductive cells and male reproductive cells. तो female reproductive cell, what is the name of, one more question, what is the name of female reproductive cell? This is a ova. ठीक है, and what is the name of the male reproductive cell? This is a sperm. Okay, when ova and sperm fuse together, they form a new cell. Okay, this is a single cell known as the zygote. इस single cell को हम क्या कहेंगे? zygote. Now next, what is fertilization? अभी हमने just किया था, the fusion of ovum and sperm is called fertilization. बस क्वेश्चन अलग था. क्वेश्चन क्या था? अभी हमने जस्ट किया था कि what happen when sperm come in contact with egg? सेम जैसे हमने उसमें किया था. आंसर ये हमारा है और क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन उसी से आंसर पूछ लिया. अब सेम आंसर को ही हमने क्या बना दिया था? क्वेश्चन. तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. हाउ अ जायगोट इज चेंज्ड इनटू एन एम्ब्रियो? ओके, जायगोट एम्ब्रियो में कैसे चेंज होता है? द जायगोट डिवाइड्स रैपिडली to form an embryo. The zygote divides rapidly. It means कि cell division occur in zygote. What happen? कि when zygote is formed, after that cell division is occur, and when cell division is occur, तो it is rapidly क्या हो रहा है? Divide हो रही है. That's why an embryo is formed. उससे क्या होता है? एक embryo का formation होता है. Now next, what is binary fission? अभी हमने जस्ट पहले देखा था. Splitting of an organism into two half is called fission. Okay, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था what is fission. Fission it means divided into two parts. Okay, तो splitting of an organism into two half cell, two half is called fission. Okay, amoeba reproduce by simply dividing itself into two. This type of asexual reproduction is called binary fission. Okay, so what is binary fission? Binary fission it means कि splitting of an organism into two half daughter cells. This is called fission. Okay, and example क्या है? amoeba जो किसमें divided होता है? itself into two daughter cells. Now next, what is relation between force area and pressure? तो what is the relation between force area and pressure? तो the pressure is equals to the force upon area. तो pressure is equals to the force upon area. तो according to this formula we can say that when pressure is increases, okay, तो the area is decreases. When area is increases, the pressure will be decreases. कि जब area बढ़ेगा प्रेशर कम होगा. ओके, एंड जब एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा. व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल? द बेस्ट एग्जांपल इज नेल. ओके, नेल के अंदर जब जो पॉइंटेड एरिया है, दिस पॉइंटेड एरिया का सरफेस एरिया क्या होता है? कम होता है. तो हम उसके ऊपर प्रेशर इजीली अप्लाई कर सकते हैं और वो इजीली वॉल के अंदर इंसर्ट हो जाती है. अगर हम उसका बैक साइड यूज में लेंगे तो सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है. तो इस वजह से हम प्रेशर उस पर कम अप्लाई कर सकते हैं. तो दैट्स वाई हम जो बैक साइड से वहां से हम नेल को इजीली एंटर नहीं करवा सकते. तो इट मीन्स कि फोर्स अपॉन एरिया. ओके, तो इट मीन्स प्रेशर प्रोपोर्शनल जो एकदम सिमिलर है अकॉर्डिंग टू फोर्स, कि फोर्स की सिमिलर, फोर्स जितना होगा प्रेशर उतना ही अप्लाई होगा. बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ओके, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू
फोर्स के इक्वल है, फोर्स जितना लगेगा प्रेशर उतना ही लगेगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ेगा, फोर्स कम लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो एरिया कम होगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स? The force which acts only when objects are in contact is called contact force. कि the force which act only when objects are in contact, so this is called contact force. For example, muscular force. Muscular force, this is an example of contact force. What is force? A force is a push or pull to do a work. कि when we push anything, when we pull anything, it means कि we apply a फोर्स। कि जब हम कुछ भी खींच रहे हैं या पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। तो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? अ फोर्स इज अ पुश और पुल टू डू वर्क। कि कोई भी वर्क करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर उसको पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो दिस इज अ वर्क या फोर्स। What happen when two forces applied on an object in the same direction? Okay, तो what happen when two forces applied on an object in the same direction? कि for example ये एक डायरेक्शन है, ओके, एंड सिमिलर हमने वापस सेम ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा है कि when an object what happen when two forces apply on an object in the same direction? This is a force 1 and this is a force 2, सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो what happen? The two forces add up, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि दिस वन इज F1 और F2 दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। What happen when two forces apply on an object from the opposite direction? कि एक हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दिस इज अ F1 एंड दिस इज अ F2 फोर्स। तो व्हाट हैपन व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाई ऑन अ ऑपोजिट डायरेक्शन? तो दे आर क्या हो जाएंगे? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या होंगे? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। द टू फोर्सेस सब्सट्रैक्ट टू गिव अ नेट फोर्स ऑन द बॉडी। कि जो बॉडी है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हैवी हो, जो ज्यादा फोर्स लगेगा, बॉक्स बॉडी उसी ओर मूव करेगी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैज टू हैपन फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले? व्हाट हैज टू हैपन फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले? तो एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। ओके, टू ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी फोर्स अप्लाई होगा। हैज फोर्स ओनली मैग्नीट्यूड और बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड? तो यस, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो हैज फोर्स ओनली मैग्नीट्यूड और बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो दोनों ही होता है। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ on the basis of interaction, what are the two categories of forces? Okay, so basically how many types of forces? So there are two types of forces. First is contact force and second is non-contact force. There are two forces. First is contact force and second is non-contact force. Now next, what may be the consequence when a force is applied on an object? Okay, so when a force is applied on an object, the consequence will be first change in the shape of the object and second change in the state motion of the object. So how can change in the shape of the object? For example, sponge. Okay, तो when we apply a force, sponge can change their shape. कि जैसे ही हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो स्पंज क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ओके, सेम एग्जांपल रबर बैंड। व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर, की जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो हम उस पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स अप्लाई लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उसका शेप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एंड चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि फॉर एग्जाम्पल कि एक बॉक्स है, हमने उसके ऊपर हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हो गया? मूव करने लग गया। तो दिस इज अ कि इसमें हमने क्या करा? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हमने चेंज किया। जैसे फॉर बॉल है, हमने उसको बैक से हिट किया तो उसका मोशन चेंज हो गया, उसका जो स्टेट थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो दैट्स व्हाई वी कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट
and state of the motion of the object. Now next, what causes a change in the state of motion of an object? ओके, जब हम state of motion object की change करें तो उसमें क्या क्या reason है? What is the reason behind it? तो first, the force of friction is responsible for change in the state of motion. Okay, the force of friction भी apply हो रहा है उस पे, तो that's why it is responsible for change in the state of the motion due to the friction की वजह से ही वो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है. Name some non-contact force. Okay, so there are many non-contact force. Example: electrostatic force, magnetic force, force due to the gravity. All are non-contact force. सभी हमारे क्या है, non-contact force है. Now next, write the unit of pressure. So what is the unit of pressure? Newton per square meter. This is the unit of pressure. Do liquid also exerted pressure? Yes, liquid also exerted pressure. When a liquid is put into a vessel, it extract pressure on its bottom and wall. कि इसके लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल है हमारे इसके अंदर कि भाई हमारे लिक्विड ऑल्सो एक्सर्टेड अ प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक बॉटल ली, बॉटल के अंदर हमने एक होल करा. ओके, आफ्टर दैट कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि जहां पे हमने होल किया वहां से प्रेशर से वाटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है. तो दिस इज द एग्जाम्पल कि दैट्स लिक्विड ऑल्सो एक्सर्टेड प्रेशर. लिक्विड क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स द वॉल ऑफ द बॉटल की बॉटल की वॉल पे क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. Now next, what is rolling friction? Okay, so when an body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. कि when a body rolls over the surface of another body, कि जैसे वो व्हील, हमने कोई बॉक्स है, बॉक्स को मूव करने के लिए हमने उसके नीचे क्या लगा दिए, व्हील्स लगा दिए. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. Okay, the resistance to its motion is called rolling friction. Give reason why bicycle and car tires are made rough. Okay, so what is the reason कि bicycle and car tires are made rough? तो by making their tire rough, increasing the friction. Okay, so what is the important point? The increasing the friction. We know that कि friction is applied on the rough surface, also apply in the smooth surface, but जो smooth surface है वहां पे friction कम अप्लाई होता है और जो rough surface है वहां पे friction ज्यादा अप्लाई होता है. तो ड्यू टू when जो smooth surface है हम वहां पे स्लिप क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू द लेस ऑफ फ्रिक्शन वहां हम इजिली मूव क्यों नहीं कर पाते जो स्मूथ सरफेस है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम होता है. और जहां पे रफ सरफेस है वहां पे हम इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है. तो दैट्स व्हाई द कार टायर्स मेकिंग रफ, तो मेकिंग द टायर ग्रिप बेटर अलोंग द रोड एंड प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम स्लिपिंग. कि उनकी रफ इसलिए है कि दैट्स व्हाई कि टायर और रोड के बीच में इजीली फ्रिक्शन अप्लाई हो सके और जो वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा व्हीकल्स फ्रॉम स्लिप, कि व्हीकल जो है वो स्लिप नहीं हो सके, उनको प्रिवेंट करने के लिए. Now next, what is static friction? The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction. कि the force required to overcome friction at the instant of an object start moving from रेस्ट इन पोजिशन. कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजिशन में है तो उस समय हम अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. What is force of friction? The force which always oppose the motion of the body over other body in contact with it is called frictional force. कि जो फोर्स है always oppose the motion of a body over the other body contact with is called the frictional force. कि जैसे फ्रिक्शन बेसिकली फ्रिक्शन का अप्लाई होता है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके, तो सेम कि जो ओवर बॉडी इन कांटेक्ट विथ इट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज opposite to the direction which force is
अप्लाइड। हमेशा कहाँ होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कहाँ पे होगा? हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ये किसकी डायरेक्शन होगी? फ्रिक्शन की। एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। स्पोर्ट्समैन स्पाइक शूज क्यों यूज करते हैं? इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे उनको क्या प्रोवाइड करा रही है? बेटर ग्रिप। दैट्स व्हाई दे यूज स्पाइक्स। और स्पाइक्स की वजह से भी उनमें क्या हो रहा है? बेटर ग्रिप एंड दे कैन मूव इजीली, दे कैन रन इजीली ऑल्सो। विच इज मोर स्मूथ? वेट, मडी एंड सीमेंटेड फ्लोर। तो क्या ज्यादा स्मूथ होगा? वेट मडी फ्लोर या सीमेंटेड फ्लोर? वेट मडी फ्लोर। दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, what do you mean by efficiency? What is efficiency? Efficiency is a dimensional number that measure the effectiveness of a machine in transforming the power input to the device to power output. So this is the efficiency. कि क्या है? Efficiency is a dimensional number that measure the effectiveness of a machine. कि मशीन कितनी इफेक्टिव है, कितनी पावर है इसमें, वो कितना वर्क कर सकती है। तो ट्रांसफॉर्मिंग द पावर इनपुट टू द डिवाइस टू पावर आउटपुट, कि वो हम उसमें कितना इनपुट कर रहे हैं, कितना उससे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो उसके अंदर कितनी एफिशिएंसी है, वो कितना वर्क स्मूथली कर पा रही है, कितनी जल्दी वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करा रही है। तो दिस इज द एफिशिएंसी। नाउ नेक्स्ट, name the different types of friction. There are basically 3 types of friction. First is static friction, second is limiting friction या फिर dynamic friction, और third is sliding friction. तो basically 3 friction: static friction, limiting friction and dynamic friction. Okay, तो what is friction? Same question. The friction is resistance offered to the movement of one material against अनादर। कि कोई भी एक बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉक्स, तो हम इस पे फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? इस साइड में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। की फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? फ्रिक्शन मूव करेगा। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अप्लाई ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दिस इज नोन एज द फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन क्या करेगा? अप्लाई होगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की क्या कॉज है? द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज द इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। बेसिकली फ्रिक्शन इज अप्लाई ऑन टू ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? टू ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, और वो जो टू ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, तो उनकी जो सरफेस है वो कैसा है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सरफेस एरिया कैसा है। फ्रिक्शन अप्लाई वही होगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया कैसा है? स्मूथ सरफेस एरिया है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और रफ सरफेस एरिया है तो फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई होगा। तो इट इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। ऑन विच काइंड ऑफ सरफेस द फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर? स्मूथ सरफेस या फिर रफ सरफेस? तो फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इन केस ऑफ अ रफ सरफेस। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट, नेम द 2 फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड। फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? ए, frictions depend on the nature, smoothness of a surface contact, and friction depend on the how hard the two surface press together. Okay, इस पे वो क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। What are lubricant? Very important. What are lubricant? तो the substance which reduce friction are called lubricant. जो क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। कि हमें जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रीस ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द lubricant. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ड्रैग? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय
फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रैग. किसके थ्रू अप्लाई हो रहा है? फ्लूइड्स के थ्रू अप्लाई हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग. तो एट विच यूनिट साउंड बिकम हार्मफुल? कौन सी यूनिट पे साउंड हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है? द मोर देन 80 डेसिबल. 80 डेसिबल से ज्यादा होगी तो दिस इज अ हार्मफुल नॉइज. वो क्या होगी? हार्मफुल होगा साउंड. नाउ व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? The presence of exists on unpleasant sound in the atmosphere is called noise pollution. तो unpleasant sound, okay, present in the atmosphere is known as the noise pollution. What part in humans produce sound? Okay, तो it is the voice box in human that produce sounds. Vocal cord, voice box जो humans में present होती है वो क्या produce कर रही है? Sound produce कर रही है. Now next, does sound travel through solid also? Okay, yes, sound can travel through solid also. तो sound can travel through in the liquid, solid and gas. Sound सभी में ही travel कर सकती है, liquid, solid and gas. 3 states of matter. Okay, sound can travel 3 states of matter: liquid, solid and gas. What is to and fro motion of an object called? This motion is called vibration or oscillatory motion. क्या कहेंगे इसे हम? Vibration and oscillatory motion. Now what is an echo? What is echo? The reflected sound if heard distinctly from the original sound is called an echo. जो reflected sound होती है किसी भी बैरियर से या फिर किसी भी ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट होके जो साउंड आती है हमें, दिस इज कॉल्ड एज इको. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ हाई वॉल और ऑब्स्टेकल्स. कोई भी हाई वॉल्स होती है या फिर ऑब्स्टेकल्स कुछ भी होते हैं. जैसे आप एक ओपन रूम के अंदर जाके बोलो तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड होगी, साउंड आपको वापस सुनाई देगी. तो दिस इज नोन एज द इको. What do you understand by string instrument? Okay, string instruments होते हैं तो those instruments have taut string which vibrate when they are plucked, struck and played with bow. Okay, so these are string instruments. Now next, what is the normal length of vocal cord in man? तो बेसिकली जो हमारी नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है? 20 mm. दिस इज अ नॉर्मल वोकल कॉर्ड लेंथ. ओके, नाउ डिफाइन एम्पलीट्यूड. इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन साइड. फॉर एग्जाम्पल कि लाइक दिस. ओके, तो ये इस तरीके से साउंड ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो दिस इज अ एम्पलीट्यूड. ओके, इसको हम डिफाइन करेंगे. दिस इज अ एम्पलीट्यूड. इसको हम क्या कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड. ओके, दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. नाउ डिफाइन फ्रीक्वेंसी. It is the number of vibration produced by a vibrating body is known is 1 second. For example कि जैसे ये जो फ्रीक्वेंसी है कि like this, ये इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज अ लो पिच. कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इन 1 सेकेंड ये कितना फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है, तो दिस इज अ लो पिच फ्रीक्वेंसी. और हाई पिच फ्रीक्वेंसी लाइक दिस, कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो दिस इज अ हाई पिच फ्रीक्वेंसी कि वो कितनी ज्यादा कितनी जल्दी 1 सेकेंड के अंदर मूव कर रही है, तो दिस इज अ हाई पिच फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज अ लो पिच फ्रीक्वेंसी. डिफाइन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. जो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन है उसको हम किस में मेजर कर रहे हैं? हर्ट्ज में. तो इट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ व्हाट इज नॉइज? द साउंड विच इज लाउड, irritable and harsh which annoys us and reduce our work efficiency is called noise. Okay, तो the sound which is loud होता है, irritable होता है, harsh होता है, annoy us and reduce our work efficiency is called noise. This is known as the noise. Okay, thank you. All the best for preparation.